Hello everyone. So in this class I am going to explain about the compounds formula and its characteristic. Okay. So first thing is formula. Okay. So compounds are represented by formula. Alright. A compound is represented by a formula which shows how many atoms of which elements constitute a molecule of the compound. For example, water. The chemical formula of water is H2O. Okay. It indicating that two atoms of hydrogen and one atom of oxygen constitute a one molecule of water. Alright. And so many examples are here like carbon dioxide, CO2, sulfuric acid, H2SO4, hydrochloric acid, HCl. Means these are the formula of these particular compounds. These all are compounds and they are having formula, and formula represent, okay, it represented by the number of atoms, okay, of each elements which helps in the formation of that particular compound. Okay, like in carbon dioxide, one atom of carbon combines with two atoms of oxygen. In sulfuric acid, two atoms of hydrogen combines with one atom of sulfur and four atoms of oxygen. In hydrochloric acid, one atom of hydrogen combines with one atom of chlorine. Okay, so these are the formulas of particular compounds. Means जैसे आपने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं वो सिंबल के थ्रू सिंबलाइज किए जाते हैं, वैसे ही कंपाउंड जो होते हैं उनका ये शॉर्ट फॉर्म होता है फॉर्मूला, जो कि शो करता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटम्स are forming that particular compound. Alright students, so the first characteristic of a compound is it can be split into constituent elements only by a chemical means, not by any physical means like filtration, sublimation and so on. Means compound अपने constituents में distribute तो हो सकता है, but कैसे वो distribute होगा? By only a chemical process, not by any physical process. Okay, so in this example, when sodium combines with, sodium is a metal, when this sodium combines with water, it will form sodium hydroxide and liberate out hydrogen gas. Okay, similarly, when magnesium combines with hydrochloric acid, it will form hydrochloric acid means HCl. Okay, HCl का सेकेंड पार्ट क्या है? क्लोरीन. तो ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा विद द मैग्नीशियम एंड विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट? दैट इज हाइड्रोजन. तो अगेन इट विल रिड्यूस आउट द हाइड्रोजन. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4. तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सल्फेट. दिस सल्फेट विल अटैच विद जिंक, सो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट, एंड व्हाट इज लिबरेटेड आउट? दैट इज हाइड्रोजन गैस. So these all are the reaction in which the formation of hydrogen can be observed. Alright, now the next property is the property of a compound. The property of a compound are entirely different from those of the constituent elements. For example, जैसे ये water formation की मैंने chemical reaction यहाँ पे लिखी है, तो when two molecules of hydrogen combines with one molecule of oxygen element, they are going to form two molecules of water. Okay, अब इनकी हम characteristic को match करते हैं. हाइड्रोजन, it is a highly inflammable gas, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे ये बर्निंग स्टार्ट कर देती है. एंड ऑक्सीजन, इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस. मीन्स ये क्या करती है? ये किसी भी अदर सब्सटेंस की बर्निंग को सपोर्ट करती है. जैसे कि अगर आपने कैंडल को रूम में बर्न करके रख दिया है, लिट करके रख दिया है, तो इट विल कंटिन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो मीन्स ये बर्न होता है और ये बर्निंग को सपोर्ट करता है. वेयर एज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ओके, बाय when they combine they forming water, and as we know water is neither a combustible substance nor a supporter of combustion. Okay, means ना तो ये फायर को मतलब सपोर्ट करेगा किसी भी चीज की फायर, और ना ही खुद बर्न होता है. इट मीन्स ये जस्ट इन दोनों का क्या है? अपोजिट है. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन में जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है उससे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो इस कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इंटायरली उसकी कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है. ऑलराइट,
Now the third point is elements combine in a fixed proportion of atoms to form a compound. For example, water. Okay, for example, water. In water, 2 atoms of hydrogen combines with 1 atom of oxygen. Okay, so they are forming 1 molecule of water. Okay, and the atomic ratio of hydrogen to oxygen in a sample of water will be 2:1. मतलब 2% है हाइड्रोजन एंड 1% इज ऑक्सीजन. अब अगर आपने इस परसेंटेज को थोड़ा सा भी चेंज किया तो दे विल नेवर फॉर्म वाटर. इट मीन्स जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन है उसमें जो भी परसेंटेज किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रेजेंट है दैट शुड बी फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, देन ओनली इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. और इसी जगह पे अगर 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा तो इट इज नॉट नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. इन फैक्ट now it is known as carbon monoxide. So we can easily say that in the formation of particular compound, the percentage of its constituents is fixed, means their proportion is fixed. All right. Okay, so the next point is a compound contains the constituent elements in a fixed proportion of mass. यहाँ पे था फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ओके, एलिमेंट्स का फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, मीन्स उनके नंबर ऑफ एटम्स का, और साथ ही साथ उनके वेट का भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है. तो अगर मास के अकॉर्डिंग हम इसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन निकालें वाटर का H2O का, तो हाइड्रोजन 1 पार्ट होता है, वेयर एज ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 8 पार्ट्स होगा. ओके, सो मास फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी होगा. ओके, मास का भी फिक्स प्रोपोर्शन होगा. लाइक वाटर में अगर एटम के आप प्रोपोर्शन पे उसका फॉर्मेशन कर रहे हो तो एटम के बेसिस पे आपको 2:1 रेशियो पिक करना है. और अगर आप मास के बेसिस पे पिक कर रहे हो तो मास के बेसिस पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा दैट शुड बी 1:8. अब अगर आपने एटम के बेसिस पे पिक किया है तो आपको ये पिक करना है. अगर आपने मास के बेसिस पे पिक किया है तो यू हैव टू पिक दिस वन. बट अगर आपने इनमें कोई भी चेंजेस किए तो जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर आप क्रिएट कर रहे होगे वो फॉर्म नहीं होगा. मींस किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो ईदर फॉलो करता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ एटम और इट इज फॉलोइंग द फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास. ऑलराइट. एंड वन मोर थिंग, जब भी 1:8 ग्राम, ओके, 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो इट विल फॉर्म 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, बिकॉज आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपने हाइड्रोजन का 1 ग्राम पिक किया है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम पिक किया है, तो जो आपको वाटर मिलेगा दैट इज 9 grams. All right, because a matter is neither created nor destroyed.